اس کا 13واں باب نکالیے گا. ہم نے آلریڈی اس کو پڑھا تھا اور ہم نے اس پر غور بھی کیا تھا جب ہم پاؤں دھونے کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے. یوحنا کے مطابق انجیلی بیان اس کا 13واں باب، اور ہم اس کی جو آیات مقدسہ ہے ہم اس کی ہم نے پہلے کافی حصہ کلام کا پڑھ لیا ہے. چوتھی آیت سے ہم خدا کے کلام کو 13ویں باب کی چوتھی آیت سے ہم خدا کے بلکہ اس کو ذرا آگے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے کافی زیادہ پڑھ لیا. اس کو 12ویں سے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یوحنا کے مطابق انجیلی بیان اس کا 13واں باب اور 12ویں آیت سے خدا کے کلام کو ہم پڑھیں گے. تو کیا لکھا ہے 12ویں آیت میں؟ پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا، کیا ہوا؟ مین واس پوری کام کرتے. پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گئے. کیا ہو گیا؟ اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا. ہم نے پہلے کلام کا حصہ پڑھا کہ یسوع مسیح نے پہلے ان کو تیار کیا، پہلے پاؤں دھوئے، اور پھر ہمیں پطرس کی گفتگو ہم نے پڑھی. لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ وہ سارا کام کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. پاؤں دھو لیے گئے اور پاؤں دھونے کے بعد جو ہے شاگرد بھی بیٹھ گئے اور خداوند یسوع مسیح بھی بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، آگے ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ یسوع نے پوچھا ہونا کیا کیا؟ یسوع نے پھر سوال کیا کہ نا تسی آگے نہیں جانتے. دھونے کے بعد پھر یسوع نے اسی نقطے پر کو لے کر آیا. کیا ہوگی سمجھ لگی؟ 12ویں آیت سے پڑھ رہے ہیں اور 12ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ 13ویں آیت. تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو. کیا کہتے ہو؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. ٹھیک ہے. پس جب مجھ خداوند، کیا تم خداوند کہتے ہو، اپنا منشی کہتے ہو، جب مجھ خداوند اور استاد نے کیا کیا ہے؟ تمہارے پاؤں دھوئے. کیا کیے؟ تو پھر کیا ہے؟ تم پر بھی فرض ہے. سانو کوئی پوچھے نا ٹاڈے تے کی فرض ہے، اسی کہنے اسی آزاد ہی ہیں. اسی کی کہنے ہیں؟ پر میں نے پہلے بھی بتایا تھا کلام میں 5 باتیں فرض سمجھ کی گئی. کیا کہا؟ تم پر فرض ہے، لازم ہے، کوئی بھی ہو. ہم نے کامرہ کے اندر جب اس رسم کو شروع کیا تو ایک بیان تھی، اس نے کہا کہ یہ ہندوؤں کی رسمیں آپ لے آئے ہیں، کیونکہ پہلے مجھے نہیں پتا کہ خدا ان کے رسمیں کیا تھی. تو وقت لگا یہاں پہ بھی ہمیں چیزوں کو سمجھانے میں، اس لیول کو لے کے جانے کے لیے. ذرا سمجھیے کلام کو. یسوع نے کیا کہا؟ تم پر بھی فرض ہے. کیا فرض ہے؟ کیا کرو؟ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا. کیا کیا؟ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے. اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو. کیا ہو؟ اے والی گلا اگر تمہیں پتا نہیں تو کی ہو تسی مبارک ہو. یسوع کہتا مبارک ہو. ٹھیک ہے، بشرط کہ ان پر جاننے. اور پھر یسوع نے اگلی کہا شرط کے بشرط، یعنی اتنا کٹ کے یسوع مسیح نے صاف الفاظ سے گل کہی ہے کہ بشرط کے کیا کرو ان پر، یعنی کوئی ایماندار اس فرض سے آزاد نہیں ہے. کیا ہے؟ بولے کوئی ایماندار اس فرض سے آزاد نہیں ہے. اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ میں تم سب کی بابت نہیں کہتا کیونکہ یسوع کو پتا سی اب میں کئی نہیں ہوں گے.
आगे, जिनको मैंने सुना उन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन ये इसलिए कि ये रिश्ता बुरा हो के जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। दोनों हाथों को उठाइए, खुला दरवाज़। आज हम यीशु मसीह के पाँव धोने की अहमियत पर बात करेंगे और इसमें 4 पॉइंट्स जो है वो बड़ी अहमियत के हामिल है। 4 पॉइंट्स पर मैं बात करूंगा। ये 4 बातें यीशु के पाँव धोने से जो हमें हासिल होती हैं इसकी अहमियत के अंदर है। याद रखिएगा, किताब मुकद्दस में इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ईमानदार जो है वो एक दूसरे के पाँव धोते हैं। क्या है? ईमानदार क्या करते हैं? बोले बोले क्या करते हैं? एक दूसरे के पाँव धोते हैं। और पूरा साल खुदा का शुक्र हो इस प्रैक्टिस को हम कर रहे होते हैं। पिछले दिनों हम एक बड़ी टीवी चैनल पर मौजूद थे, वहाँ पर बात हो गई। एक पादरी को हमने कहा कि यार तो लास्ट टाइम कितनों पाँव धोते हैं? रोतरी राज्य की बात हो रही थी, तो सवाल किया गया उनसे, पादरी साहब ने पूछा कि यार तो लास्ट टाइम तो प्रैक्टिस की थी, इसे ईमानदार के पैर को धोते हो। तो याद रखिएगा ये प्रैक्टिस अपने पासवान के साथ मेरी जारी रहती है। और मुकद्दस औरतों को जहाँ मुखातब किया गया ना, उन ईमानदार बहनों को, उनकी खूबी में कहा उन्होंने मुकद्दसों के पाँव धोए हों। क्या हो? उनकी खूबियों में, उन बहनों की खूबियों में अंदर ये बात शामिल की गई थी कि उनमें यह भी शर्त रख दी गई थी वो पाक भी हों और उन्होंने मुकद्दसों के पाँव भी धोए हों। ठीक है? ये रफ़ाकत सिर्फ फसा तक महदूद नहीं होनी चाहिए। ये रफ़ाकत ईमानदारों के ईमान का इज़हार है। इसे फर्ज समझ के करना है। क्या करना है? ये रूहानी प्रैक्टिस का हिस्सा है, ये रूहानी रवैये का हिस्सा है, ये रूहानी शख्स के अंदर, याद रखिएगा, रूहानी वो नहीं होता। मैं फिर इस लफ्ज़ पे आके फंस जाता हूँ, न जाने क्यों, क्योंकि मैं ये पेन होता है इस मामले के ऊपर। हम जो स्पिरिचुअल समझते हैं, हम उसको स्पिरिचुअल समझते हैं, जो बाकायदगी से चर्च आ रहा है या जो दुआ कर रहा है, जो रोज़े रख रहा है। याद रखिएगा ये अमल खुदा में कायम होने का सबूत है हमारे। क्या है? रूहानियत नहीं, क्या है? अगर असी कार्य का मतलब कि असी, और मैंने उस दिन भी कहा था, अगर किसी की दुआ नहीं बढ़ रही तो उसकी कोई तरक्की नहीं है। अगर किसी भी घट रही है तो मतलब है बर्दश्तगी का शिकार हो गया। क्यों है? वो गुमराही की जानिब जा रहा है। अगर वो दुआ ज़्यादा होने की बजाय क्या हो रही है, तो इसका अमल है बर्दश्तगी और ख़तरनाक ज़ूम जो है उसके अंदर शुरू हो गया। इसलिए इस बात को अगर समझिए, ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये तो करनी है, क्योंकि ये करेंगे तो खुदा में कायम रहेंगे। क्या रहेंगे? पर हमारी रूहानियत का असर, हमारी रूहानियत का रवैया उस वक्त पता लगेगा जब हम लोगों के साथ डील करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, ऐसा हम समझ लो। शिवाज भाई की करती शुक्रगुजारी के ऊपर मैंने इस बात पर गौर किया कि भैया आप दुआ कर रहे हैं, सुबह से शाम तक दुआ कर रहे हैं, और तेरे रवैये का फायदा तेरे बच्चों को नहीं, महल्ले को नहीं, ईमानदारों तो की हो है? फिर शोर ही है, कोई और नहीं, फिर शोर है।
بھائی اگر میری دعا سے استفادہ ہی نہیں ہو رہا کسی کو ہے، جسٹ پریکٹس اور ریاضت میں کر رہا ہوں، اس کو میں نے بس گول بنایا اور اس کے چکر میں گھوم رہا ہوں. یاد رکھیں یہ جو روحانی پریکٹس ہے یہ بائبل مقدس میں، کیونکہ جب ہم اسپرچل ہوتے ہیں تو پھر ہم آٹو پہ کچھ چیزیں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ آٹو پہ آتی ہیں، مجھے چالو کرنی نہیں پڑتی. کیونکہ اسپرچل جو بندہ ہے وہ ایکٹ نہیں کر رہا ہوتا نا، وہ منافقت نہیں کر رہا ہوتا، وہ اس سے ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ وہ رک ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں رک سکتا؟ کیونکہ اس کے اندر جو خدا کا روح ہے نا اسے مجبور کر دیتا ہے وہ سب کچھ کرنے کے لیے. ہیلیلویا. خدا کا روح اسے جھنجھوڑ دیتا ہے اس بات کے لیے، خدا کا روح سے تیار کر دیتا ہے اس بات کے لیے، خدا کا روح سے چینج کر دیتا ہے اس بات کے لیے. اگرچہ کہیں جگہ پر اس کے ذہن کے اندر بڑے خیال آئیں گے، نہیں 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 نہیں، پھر بھی خدا کا روح کیا کرے گا؟ اسے جھنجھوڑ کے اسی جگہ پر لے جائے گا، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد سوچے گا نہیں یار یہ جسمانی سوچ سی ہے، یہ تو جسم دی گل سی، یہ پاک روح دی گل نسی ہے، یہ تو کلام دی گل نسی ہے، یہ تو یار برگشتگی دی گل سی، اے تے خدا تو دور والے بندے دی گل سی ہے. کئی دفعہ انسان ہوتے ہوئے ہم بہت سی چیزیں میں آ جاتی ہیں. کون سی اس میں بڑی بات ہے؟ کسی خادم نے لکھا تھا، اس نے کہا پرندوں کو ہم اپنے سر کے اوپر سے اڑنے سے روک نہیں سکتے. کوئی روک سکتا؟ پر سر ہم گھونسلہ بنا دو تو روک سکتے ہیں نا. اجازت دیں گے؟ ہے ایک چڑیا آئے اور آپ کے سر پہ کیا کرے اور بٹھا کرے ڈیم پہ، دیں گے اجازت اس کو؟ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ روک نہیں سکتے، پر آپ اسے اجازت بھی نہیں دے سکتے کہ ہر اس خیال کو جو خدا کی طرف سے نہیں ہے اس کی پیروی کی جائے، ہر اس بات کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سمجھا جائے جو سمجھنے کے قابل نہیں ہے. کتاب مقدس میں یہ ایمانداروں کے رویے کے اندر ہے کہ مقدسین ہمیشہ ایک دوسرے کے پود ہوتے ہیں. کیا ہے؟ ایک دوسرے کے. اب 4 باتوں کی طرف میں جلدی سے آتا ہوں. سب سے پہلی بات کہ یسوع مسیح نے جب پود ہوئے، کیونکہ یہودیوں کے اندر جو تھا وہ اوپن، یہ جو ہم بند شوز پہنتے ہیں یہ اس کا ابھی ایجاد نہیں ہوئے ہے. جی پرانی کینچی نہیں ہے، اب پرانی علی کرا جو دیے ہوتے ہیں بدلا علی، اس وقت اس طرح کے جو شوز تھے وہ چلتے تھے، اور یہ روڈ میپنگ بھی نہیں تھی، نقلیاں پکیاں سن ہے. تو یہ جو پاؤں دھونے ہیں یہ پرانے عہد نامے، یہ کوئی نئی رسم نہیں ہے، نئی عہد نامے کی نہیں ہے. ابراہیم جب اس کے پاس فرشتے آئے تو اس نے کیا کہا؟ رکو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں. یعقوب کے گھر کے اندر اس نے پاؤں دھوئے. یعنی بائبل مقدس میں آپ خدا کے کلام کو پڑھنے والے ہیں تو یہ پاؤں دھونے کا سلسلہ تو نیا تو نہیں تھا. یہاں پر ابراہیم جو ہے ان مقدسوں کے پاؤں دھو رہا ہے، پھر بعد میں کیا کر رہا ہے؟ ان کو کھانا پیش کر رہا ہے. یوسف کو، یعقوب کو آپ پڑھیں بائبل مقدس میں، جتنے بھی لوگ پڑھیں گے تو یہودی لوگوں کے اندر یہ روایت ہوتی تھی کہ وہ اور کیا کرتے تھے، جو ان کے مہمان آتے تھے. اب دیکھو جب ربکا کے لیے جب الیزابت کو بھیجا ہے کہ جا میرے رشتہ داروں میں جا، اور جب بات سلیکٹ ہوگی آپ کے رشتے کے معاملے میں، اس نے کہا ہمارا نوکر کیا کرتا، تیرے اونٹوں کو بھی پانی پلاتا، تیرے پاؤں بھی دھوتا ہے. کیونکہ لوگ دور سے چل کر آتے تھے اور پاؤں کیا ہو جاتے تھے؟ مٹی مٹی چل کے آتے تھے. تو سب سے پہلے کام کیا تھا؟ پاؤں دھوئے جائیں تاکہ کوئی گندے پاؤں کے ساتھ گھر میں داخل نہ ہو. ٹھیک ہے، اوکے. اب یسوع نے، اور یہ کام کس کا تھا؟ یہ کام مالک کا نہیں ہوتا تھا، یہ استاد کا کام نہیں ہوتا تھا. اس کے لیے نوکر رکھے جاتے تھے. کیا کیے جاتے تھے؟ نوکر. پر ابراہیم کی خدا کے ساتھ محبت، اس لیے وہ ان فرشتوں کے کیا کر رہا تھا؟ خود پاؤں دھو رہا تھا. یعنی وہ محبت میں سب کچھ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی یہودی لوگ تھے یا معاشرے کے اندر لوگ تھے وہ پاؤں دھونا
आम सी बात थी। क्या थी? आम सी बात थी। पर यीशु मसीह कोई रस्म नहीं कर रहा था शुरू, यानी यीशु मसीह का ये रस्म तो पहले भी थी, पाँव तो पहले भी धोए जाते थे, पर पाँव धोने का मकसद कोई और था पहले। क्या था? पर अब यीशु कोई और मकसद दे रहा है। यीशु मसीह जब पाँव धो रहे हैं तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? यशायाह 53 बाब में यीशु मसीह को बतौर खादम पेश किया गया। क्या किया गया? वो खुदा की तरफ से खादम बनकर आया, और यीशु मसीह ने कहा मैं खादम बनकर आया हूँ। और यीशु मसीह कोई खादम आला नहीं बन के आए थे, क्योंकि खादम कभी आला नहीं होता। खादम खादम होता है, ये आला आला होता है। ठीक है, ये खादम आला पाकिस्तान के अंदर जो है ना, एक बड़ी इस्तिलाह है? आला भी और खादम भी हो, तो खादम कभी आला नहीं हो सकता, खादम खादम होता है। ठीक है, क्योंकि ये अब हमारे पादरियों के अंदर भी बड़ा पादरी है, खादम आला है, सीनियर है, और बड़ी चीज़ें जो है, क्योंकि खादम है आला। और फिर हमारे सियासी हाल भी यही है, खादम आला है, यानी खादम भी और आला भी। तो याद रखिए, खिदमत करने वाला कभी आला नहीं हो सकता, खिदमत करने वाला खिदमत करने वाला होता है। आमीन। और यीशु मसीह ने कहा मैं खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने आया। तो यीशु मसीह ने सबसे पहली बात पाँव धोकर इस बात का इजहार किया कि मैं खिदमत करने के लिए आया हूँ, मैं अपने लोगों की खिदमत करने के लिए आया हूँ। और यीशु मसीह ने खिदमत का सबूत दिया। अगरचे वो कलाम क्या कहता, अगरचे वो खुदा का खालिद उसने अपने आप को कर दिया था, पर उसने खिदमत का भी सबूत दिया और कलाम को भी पूरा किया जो यीशु मसीह के बारे में। यानी सिर्फ यीशु ने ज़बान से खादम होने का दावा नहीं किया, बल्कि यीशु ने अपने अमल से भी खादम होने का दावा किया। आमीन। और वह यीशु पर्सनैलिटी है जिसके बारे में ये कहा जाता है। दुनिया के अंदर आपको बड़े लोग मिलेंगे, बड़े बड़े छुन के फिकड़े होंगे, पर यीशु के बारे में ये कहा जाता है जो वो सिखाता था वो करता भी रहा। क्या करना बोले? जो वो करता भी रहा। यानी यीशु मसीह वह लीडर है जो सिर्फ तालीम नहीं देता था, बल्कि उस तालीम को फॉलो करता था, उस तालीम को अमल भी करता था। तो पहली बात, ये पाँव धोने की रस्म इस बात का वाज़ेह सबूत है कि यीशु मसीह क्या है? खादिम है। क्या है? और वो ऐसा खादिम था जो सिर्फ खिदमत नहीं करेगा, बल्कि कलाम कहता है कि वो इस खिदमत के बदले अपनी जान भी दे देगा। हालेलुया। सिर्फ पाँव नहीं धोएगा, बल्कि क्या लिखा? मैं फिदिये में क्या करूंगा? अपनी जान भी दे दूंगा। क्या करूंगा? बोलिए, बोले बोले, मैं फिदिये में क्या करूंगा? अपनी जान भी दे दूंगा। दूसरी बात, ये जो पाँव धोना है, क्योंकि अगर आप लूका के मुताबिक इंजीली बयान में पढ़े, ये 22वां बाब जरा निकाले मेरे साथ, ये बड़ा अहम बात है। 22वां बाब जरा, लूका 22वां बाब और उसकी तकरीबन 10 आयत से, तो ये पूरा चैप्टर ही बड़ा गौर तलब है। लूका के मुताबिक इंजीली बयान और 22वां बाब। आज मैंने गतसमनी से बाला खाना से शुरू नहीं किया, मैं आपको उसी मंदिर में ले आया। ठीक है, इसकी तरतीब साथ साथ अगर मुझे जहाँ समझ लगेगी मैं आपके साथ सालों साल से शेयर कर रहा हूँ। 22वें बाब को ज़रा देखिएगा लूका के मुताबिक, और क्या है वहाँ पर आयत जो है, अगर हम उसके रस्मी आए बाकी 24 आयत को ज़रा देखें तो क्या लिखा लूका 22 बाब की 24 आयत के अंदर, उनमें ये तकरार भी हुई। बोलिए क्या हुआ? क्या तकरार हुई? हम में से बोले कौन बड़ा समझा? यानी सवाल गला कितने कर रहे सन, केड़ी जगह पे? उससे जगह पे फंसा खा रहे सन। की कर रहे सन? यानी कलाम में कहता ना, यीशु ने, मत्ती ने वो बातें लिखी ना, यीशु ने रोटी तोड़ी और कहा, यूहन्ना ने वो बातें लिखी, लेकिन लूका क्या कर रहा है? लूका और भी बातें लिख रहा है। यानी जो आपस में वो कर रहे थे, और आपस में वो क्या कर रहे थे? यानी वो एक दूसरे के साथ जरा ना तकब्बुर शेयर कर रहे थे कि साढ़े जो बड़ा कौन है, यानी हमें बड़ा कौन है, और वो बहस कर रहे थे। लिखा वो तकरार कर रहे थे।
पढ़िए क्या लिखा है। उसने उनसे कहा कि गैर कौमों के बादशाह उन पर हुकूमत चलाते हैं। यीशु ने क्या कहा, गैर कौमों के बादशाह क्या करते हैं उन पर। यीशु ने उन्होंने गला सुनिया ना, तो यीशु ने उन्होंने टोक दिया, कहा कि तुम बड़े होने वाले की बातें क्या कर रहे हो, तुम गैर कौमों की तरह सोचते हो। क्या करते हो, गैर कौमों की तरह सोचते कि कोई क्या करे, हुक्मरानी करे। आगे पढ़िएगा। और जो उन पर इख्तियार रखते हैं, यानी इख्तियार की बात करते हो, क्या हो मेरा इख्तियार हो। आगे खुदावंदे नेमत कहलाते हैं। मगर तुम ऐसे ना होना। तुम ऐसे एक इधर गल हो रही है, आखिरी फसा दे जो यीशु ने सुनिया ना की कर रहे ने, अग दूजे नाल बहस तकरार कर रहे, लड़ रहे ने पंजाबी च दूजे नाल, है साडे चो वड्डा। हाँ, तो यीशु ने क्या, क्योंकि यीशु ने क्या मैं जा रहा वहाँ, तो उन्होंने क्या और कोई साड़ा लीडर भी, तो आपस में उनके अंदर जो है ना वो एक बहस गिर गई। तो यीशु के बाद इख्तियार कौन रखेगा जी, और सामने कौन होगा, फ्रंट पे कौन होगा, ठीक है। तो यीशु ने जब उनकी गुफ्तगू सुनी तो यीशु ने उनको फिर जवाब दिया, उनको समझाई बात कि दुनिया के लोग ऐसे सोचते हैं, चर्च को ऐसे सोचना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, चर्च को ऐसे सोचना, और चर्च के अंदर ये सोच नहीं होनी चाहिए। चर्च की ये सोच होनी चाहिए कि हर शख्स मेरे लिए काबिल इज्जत है, आमीन, हर शख्स मेरे लिए काबिल एहतराम है, आमीन। आगे बढ़िएगा। मगर तुम ऐसे ना होना। मगर यीशु ने कहा तुम ऐसे ना हो। आगे, बल्कि जो तुमने बड़ा है वो छोटे की माने, और जो सरदार अच्छा बोले बोले क्या है, जो तुमने बड़ा है वो छोटे की माने। बोले ऊंची ऊंची बोलो, भाई भी बोलो। बड़ा क्यों है, और आगे, और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की माने। सरदार क्या करने वाले की माने दो। आगे, क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठा या वो जो खिदमत करता है। बड़ा कौन है, यीशु ने सवाल किया उनसे, बड़ा कौन है, खिदमत करने वाला कि खाना खाने वाला। जरा गौर कीजिएगा, ये बातें यीशु ने उनको सिखाई उस वक्त जब वो बाला खाना के अंदर बहस कर रहे थे, तो ये बातें उनके ज़हन के बिल्कुल अपोजिट थी। यीशु ने उनसे पूछा समझ रहे हो, यानी यीशु ने बार बार की कह रहे थे, जानते हो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। तो दूसरी बात यीशु ने तौंद होकर उनके माइंड को चेंज किया कि भाई ये सरदारी वाली स्पिरिट नहीं होनी चाहिए, है ये बड़ेपन की स्पिरिट, ये इख्तियार वाली स्पिरिट, ये बड़े बनने की स्पिरिट नहीं होनी चाहिए। अगर बड़ा बनना है तो सबसे क्या करो, बड़ा वो होगा जो सबकी खिदमत करेगा। हालेलुया। बड़ा कौन है, सही कहते ना, बड़ा होना मुश्किल काम है। बड़ा वो जो होता है वो सेक्रीफाइस, जो याद रखिए, जो बंदा कुर्बानी नहीं ना दे सकता वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। बोले क्या मैंने कहा, वो बड़ा नहीं हो सकता। जो बंदा कुर्बानी दे नहीं सकता वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो दूसरी बात हमें क्या मिलती है कि यीशु ने उनको बताया कि भाई आजज होना है और फरोतर होना है। क्या होना है, कौन लोगों को क्या बताया, आजज होना है और फरोतर होना है। और क्यों फरोतर होना है, आजज होना है, क्योंकि तुमने ऐसा नहीं बनना। हालेलुया। यानी यीशु सिर्फ हमसे ये नहीं देखना चाहता कि जी मैं बड़ी अच्छे गीत गा रहा हूँ, मैं बड़ी अच्छी दुआ कर रहा हूँ, पास्टर इमरान बड़ा अच्छा कलाम सुना रहा है, ये बातें ये ज़रूर ये भी है, ठीक है, ये भी खुदा की ब्लेसिंग होती है। पर इस ब्लेसिंग को कायम रखने के लिए, क्योंकि बरकत तो खुदा ने दे दी, उस बरकत को कायम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कलाम की हर एक बात को फॉलो करना पड़ेगा। आमीन। क्या हो गया, पाप के ताबेदार रहना होगा, पाक रूहुल कुद्स की रहनुमाई में बढ़ना होगा। और फिर तीसरी पॉइंट याद रखिएगा, यीशु मसीह ने यहाँ पाँव से शुरू किया। कैसे शुरू किया, ऐ मुश्किल काम से, ठीक है। किसको हाथ लगाना, यही मुश्किल काम था। किसको हाथ लगाना बोलिए। और यीशु शुरू क्या कर रहा था, पाँव से। ये बड़ा पैगाम है हमारे लिए। इसमें क्या पैगाम है, कुरिन्थियों के खत को निकालें, पढ़ लीजिएगा बाद में, उसके बाद में बाप ने लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जिस्म एक है उसके अज़ा क्या है, बहुत से। क्या है जी, बोले बोले, जिस्म एक है उसके
अब हमारा जिस्म है तो उसके क्या है? आंखें हैं। तो आंखें क्या करती हैं? देखती हैं। कानों का क्या काम है? सुनना। हाथों का क्या काम है? जिस्म की मदद करना। हाथ क्या करते हैं? पाँव का क्या काम है? यानी अगर देखें हाथ आंख सारा कुछ अगर बंदे के पाँव ना हो, क्या ना हो? अगर पाँव ना हो तो वो देख के भी, उसके हाथ भी हो, क्या वो मदद कर सकते हैं? तो याद रखिएगा कलीसिया इसी तरह होती है। कलीसिया सिर्फ हाथ कलीसिया नहीं होते, आंख कलीसिया नहीं होती, मुंह कौन होता है? खादम होता है। पर याद रखिएगा कि मुंह जो है, अब उसने जो हुक्म किया वो कैसे तकमील होगी? हाथों से। आंखें, सुनना, पाँव। अब याद रखिएगा शायद पाँव किसी के नजदीक हकारत का बाइस हो। यीशु ने ये खिदमतों की भी बात की थी, यीशु ने ये ब्लेसिंग की भी बात की थी। कई लोग ऐसे होते हैं कि शायद वो कलीसिया के अंदर इतने तरजीह हाथ उनको नहीं दी जाती और वो यही समझते हैं। अब मुझे बताएं, अगर वो जिसको हम आम समझते हो बिल्डिंग आकर बैठ के वो अगर ना आएगा तो चर्च की बिल्डिंग कैसी लगेगी? अगर आप आते हो तो ये चर्च होता है ना, है? इसके बाद मैं अकेला भी आऊँगा तो वो फीलिंग्स वो रवैया तो नहीं होगा ना। फिर ये चर्च बनेगा कैसे? पूरे बदल के आने से होगा ना। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा हमें सिर्फ कई दफ़ा कलीसिया क्या करती है, उस वक्त इज्जत देती है जिसके हाथ में माइक होता है, आम मेंबर को लेके ना उस तौर पे वो रिस्पेक्ट हम नहीं देते। और यीशु ने फोन हो के, यीशु ने शुरू कौन से किया था, इसका ये मतलब है कि हमें कभी भी किसी को हकीर नहीं समझना। क्या नहीं करना? यीशु ने कहा कि भाई अगर पाँव ना हो तो फिर पूरा जिस्म कुछ कर सकता है? अगर चर्च के अंदर ऐसे लोग ना हों तो फिर देखें, अगर सारे माइक वाले हो जाए तो फिर चर्च में लड़ाई शुरू हो जाए कि मुझे मौका नहीं मिला, मुझे इतना टाइम मिला, मुझे इतना मिला है। तो देखिए पाँव इस बगैर, पाँव बड़े ज़रूरी है। क्या है? पाँव बड़े। तो ये खिदमत जो है ना, ये चर्च को लोग खड़ा करने वाले, खड़ा बंदा चर्च खड़ा उन्हीं लोगों से होता है जो पाँव का काम कर रहे होते हैं चर्च में। आमीन। पूरे बदन को संभाल रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? और चर्च के अंदर कई ऐसे लोग हैं वो सिर्फ पाँव का काम कर रहे हैं, उसने चर्च के सारे स्ट्रक्चर को उठाया हुआ है। अब मुंह केला तो कुछ नहीं कर सकता ना। ठीक है, तो चर्च की मूवमेंट, चर्च की ब्लेसिंग जो है, ये अंडरस्टैंड कीजिए इस बात को कि कोई भी बहुत बड़ा नहीं होता। याद रखिए छोटी से छोटी खिदमत से लेकर एक बड़ी खिदमत का काम सर्वाइव होता है। आमीन। क्या होता है? और मैं लाला जी को अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, मैंने दौरान सेमिनरी सिर्फ जुतियाँ था। क्या खाई थी? जूतियाँ उठाई थी। कई दफ़ा गुस्सा कर जाते हैं ना, किसी को जूती देने करने। ये ईमानदारों का रवैया नहीं है। क्या है? मैं आज तक किसी कन्वेंशन में होता अपने पादरी जूती और आंकड़ा खड़े हो किताबेदारी किस मिनट है ना, साइड पे मैं उन्होंने चले जाना, मैंने साइड पर रख ली क्योंकि फिर तुम पता जैसे की करते हैं पता ਅਸੀਂ ਇਹ नहीं बंदे यार किसी के अच्छे शूज़ ने उसके पैर रख के लगा। ये भी सीखें इस बात को, किसी की चीज़ें ना ख़राब करें। कई एडे सियाने होंगे ना गिरजियाँ चुक के लै जाते। ठीक है, पर मैनू नहीं पता कितना बड़ा झगड़ा होंगे कि गिरजे तो चीज़ चुक के सास भी होंगे चर्च लवाई है पर कोई खौफ नहीं होता। ये हद है दलेरी की। क्या जी? ये हाँ, खुदा ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ कोई नहीं है। सास ठीक है, इसलिए याद रखिएगा कि हमें छोटी से छोटी खिदमत का भी क्या करना है, क्योंकि छोटी छोटी खिदमतें मिलकर ना चर्च को रन कर रही होती हैं। क्या कर रही होती हैं? और चर्च के अंदर हर एक शख्स जो है वो मसीह के बदन का हिस्सा है। हालेलुया। क्या है?
मसीह के बदन का। तो यीशु मसीह ने खुद होके बताया कि भाई जो चीज़ें ताकत की कोई चीज़ बाइस नहीं है। आमीन। अगर मैं यीशु खुदावंद अगर उन चीज़ों को इज्जत देता तो तुम कौन उसमें गुलामत करने वाले। आमीन। और फिर चौथी बात मुझे नजर आती है कि यीशु मसीह ने कौन रोए। अब यीशु मसीह जब जाने वाले थे ना, क्योंकि पाक इशा जब हम लेते हैं ना, तो पाक इशा का ये हम कई दफ़ा पाक इशा के एक्चुअल मीनिंग को नहीं समझ रहे होते, हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते कि इसके अंदर क्या है। यीशु मसीह असल से जब उनसे पाक इशा ले रहा था, उनको प्याला दे रहा था, तो और बड़ी मज़े की बात यह है कि अंडरस्टैंड कीजिए, यीशु ने एक बंदे से अहद नहीं लिया। एक बंदे को यीशु ने और अहद लेना ना तरीका की सी, एक बंदे को पाक इशा मुख्तलिफ तरीके से दी गई। क्या दी गई? उसको गिलास में पीने नहीं दिया गया, उससे डिप करके दी गई। कैसे? यूदास और यूती को डुबो के दी गई और बाकी को यीशु ने कहा रोटी लो खाओ। और प्याला प्याले में से नहीं दिया, हाथ में नहीं डाल देता, उसे डुबो के दी। इसको और कलाम में लिखा है जिसना डुबो दिशान जिस्म आ गया। ठीक है, तो कई पातशाह तो लेते हैं लेकिन शैतान उनमें ज़्यादा समा जाता है और वो ज़्यादा खुदा के कलाम की मुखालफत करते हैं, वो ज़्यादा खुदा के काम में रुकावटें बनते हैं। क्या करते हैं? कई रवैया ऐसा होता है। लेकिन मैं जिस बात पर फोकस करना चाहता हूँ, देखिए यीशु जब उनसे कह रहे थे ना ये मेरा बदन है, क्या है? इसे खाओ, और ये नए अहद का खून है। क्या है? और मैंने अहद के बारे में आपको बताया था। अहद क्या था? ये कब कैसे बांधा गया था? अहद कलाम पर बांधा गया था। किस पर बांधा गया था? जब मूसा हुक्म लेकर आया था ना, खुदा के 10 कमांड लेकर आया था, तो जब उसने लोगों को पढ़ के सुनाए थे तो लोगों ने क्या कहा? हम इस पर अमल करेंगे। क्या करेंगे? तो फिर उन पर बछड़ों का खून छिड़का गया कि अहद हो गया। अहद क्या था? कि हम हुक्म पर, और खून इसलिए छिड़क कर दिया गया, इसके अंदर मोर कर दी। यानी अहद ये नहीं था, अहद ये था कलाम के साथ अहद था। किसके साथ था? और उसका प्रॉमिस क्या था? खून का मतलब ये था कि जो कोई इसको नहीं मानेगा वो मारा जाएगा। शर्त ये रख दी गई ना अहद के अंदर। ठीक है, और याद रखिएगा इस कलाम में जिंदगी भी है, इस कलाम में मौत भी है। क्या है? यीशु ने कहा मैंने कलाम तेरे सामने रखा है, लानत ले ले या बरकत ले ले। क्या कर ले? लानत ले ले। अगर मानेगा तो क्या मिलेगी? अगर नहीं मानेगा, इसका यह मतलब है कि सिर्फ कलाम पढ़ने से लोग बरकत पाते हैं, पर कई कलाम से लानतें भी कमाते हैं। ये करते ने और जानते हैं खुदा का कलाम नहीं मानते तो उन्हें जिंदगी बेबरकती रहती है। मानते हैं हमी तो क्या करते हैं? इसका मतलब है वो शख्स कभी बरकत हासिल नहीं करेगा, खुदा ने कहा वो लानत हासिल करेगा। जो जानते हुए भी हमें पता होता है कि हमने खुदा का टाइम देना है, खुदा का हिस्सा देना है, खुदा का वक्त देना है, क्या कर रहे होते हैं? यानी हम जानते हुए नहीं कर रहे होते, क्या कर रहे होते? अपने लिए बरकत नहीं ले रहे होते। खुदा ने ब्लेसिंग का भी कहा, खुदा ने लानत का भी कहा। मैंने दोनों तेरे सामने रखी है, जिंदगी भी रखी है और मौत भी रखी है। ये कलाम जिंदगी भी देता है, पर जिसको सुन के सुन हो जाकर अमल नहीं करते, फिर ये कलाम उनको मुजरम भी ठहराता है, ये उनके लिए मौत का बाइस भी बनता है। इसलिए याद रखिएगा यीशु मसीह ने, अब जरा देखें ये जो पहली बात, यीशु उनसे पाक इशा का मतलब ये नहीं था कि यीशु मसीह कोई नई रस्म करने के लिए आए थे, बल्कि यीशु उनसे शागिर्दों से अहद ले रहे थे इसके बाद उस काम के लिए। इसका मतलब है जो बंदा पाक इशा में शामिल होता है वो खुदावंद के साथ अहद करता है, मैं पाक जिंदगी गुजारूंगा। क्या करूंगा? अहद क्या है? और ये बदन, क्योंकि जब यीशु मसीह का बदन हमने खाया तो फिर हम कौन सा बदन हो गया? आप मुझे बताएं ना, अगर आप थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं इसी दूध में तो क्या हो गई? वो मिक्स हो गई। तो जब हम यीशु मसीह का बदन और खून पी रहे हैं तो इकरार हम कर रहे हैं इस बात का। ठीक है, तो इस मिशन के लिए ज़रूरी था, क्योंकि मिशन के लिए ज़रूरी था भेजा जाना। क्या होना? और भेजा जाना कैसे था? पाँव पे।
तो यीशु मसीह ने क्या किया, मूसा को क्या कहा गया था, अपनी जूती उतार दे। क्या कर दे, अपनी जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह क्या है, पाक है। पर यहाँ वो काम डबल हो गया, वहां जूती करवाई गई, यहाँ धो के भेजा जा रहा है कि जब तुम दुनिया के अंदर जाके मेरा काम करोगे तो सिर्फ जूती नहीं उतरी होगी, तुम्हारे पाँव भी धुले होंगे। है लगी आमीन। और पाँव कहाँ होते हैं, जमीन कहाँ होते हैं, इसलिए जमीन की गंदगी से पाँव धोने का मतलब क्या है, कभी कभी हमारे अंदर भी गंदगी आ जाती है, नफरत कदूरत है, जमीनी गल्ला आ जाती है ना, जमीन से गंदे होया। तो यीशु ने उनके पाँव धोए हैं ताकि उनके अंदर जो जमीनी सोच आ रही थी ना, बड़ेपन की है, इख्तियार की है, वो सोच देखे जमीन पे यीशु पे गिरते ऐसे ना उन्होंने जमीन पे, तो उनको पाँव धो के भेजा ताकि वो जमीनी सोच ना ले ले है। और मैंने उस दिन भी बताया था कि एक खादम, एक दुआ करने वाला बंदा अगर खुद करता है ना, उसके अंदर तासुब है, तो याद रखना वो उसने दुआ की नहीं है, उसने दुआ की नहीं है, अगर उसके अंदर से नफरत नहीं खत्म हुई, उन्हें हुजूरी नहीं मिली, हाले वो जज्बात उसकी हो सकते हैं, उसे हुजूरी नहीं मिली, क्योंकि हुजूरी वाला बंदा जो है ना, कितना बड़ा पैकेज उसको दिया गया। कहता है मूसा को कहा मैं तुझे कौम बना दूंगा, बड़ा नाम दे दूंगा, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, लोग खुदावंद जे इन्हां दा नाम मिटाने के मेरा नाम ही है। यानी खुद गर्ज बंदा दुआ सबसे पहला काम क्या करती है, हमारे अंदर से खुद गर्जी खत्म करती है। क्या करती है, अगर कोई बंदा ना अपने घर तक ही दुआवां कर रहा है ना, तो जज्बात दी दुआवां कर रहा है, क्योंकि वो नाल दे हसाया आज तक दुआ नहीं निकली, इसका मतलब है क्योंकि ये वो प्रैक्टिस जरूर कर रहा है, वो हाल तक दुआ करना नहीं सीखा, क्योंकि वो दुआ की है खुद गर्ज अपने चिकित घूम रही है, बस इसका मतलब है हाले तक वो हजूरी का उन्होंने मसा नहीं मिलिया, तो हाले तक उस रवैये जो नहीं गया है कि जरा दिलों के ख्यालों में चेंज कर देता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने इत्थे देखो उन्होंने भेज रहा है, इस तो पहला खुदा मूसा को भेजता कहना जुत्ती ला, पर इतने जुत्ती नहीं लवाई, इतने पैर तो आके पकीजगी का वो म्यार तो यीशु जिस मिशन से उन्होंने भेजना चाह रहा था, यीशु उन्होंने एक लैवल दे रहा है, दे रहा है एक कि इस मिशन के अंदर मैं दुआ में दस रहा था कि यूना नैनवा यीशु नहीं जाना चाहता, क्योंकि नैनवा के लोग जो सन ना, इन्होंने बड़ा बड़े लोग समझा जाता सी, की समझा जाता सी बड़े, क्योंकि एक शहर मुल्क होंदा सी पूरा, की होंदा सी शहर, और उसके अंदर ही हुकूमत होंदी सी, शहर के अंदर की होंदी सी हुकूमत होंदी सी, उसके अंदर ही। और नैनवा के अंदर जो लोग जाते सन ना, तो नैनवा का सब तो बड़ा मसला की सी, इन्हें मुसाफिर परवराना ने जुल्म किया सी, की किया सी, यानी मुसाफराना की करता सी है, जुल्म करता सी, बोलो की करता सी, मुसाफराना की करता सी, जुल्म करता सी, मुसाफराना की कर रहा सी है, जुल्म कर रहा सी। और किस तरह जुल्म करता सी, नैनवा के अंदर मनी चेंजर बैठे सन, यानी याद रखना एंड करेंसी नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, हर शहर की अपनी करेंसी सी, की सी। और जो ताजर नैनवा जाते सन ना मुसाफिर परवर, तो वो फाटक के उत्ते मनी चेंज होंगे, तो नवे बंदे को पता ही नहीं इसमें जाके गंदी कि करेंसी चलती है, वो करेंसी लेंदा सी, और दूजे करेंसी मनी चेंजर को जो समान लैन जाता सी, तो उन्हें कहता सी भाई तेना किसी ने धोखा कर दिता है, ये जो तेन पैसे दिते गए ये है ही नहीं। और फिर इस कदर बदहाल होंदा सी, उन्होंने फिर बदफेली वास्ते मजबूर किया जाता सी, कपड़े तक लवा जाते सी, यानी कि रोटी खान तो उधर भी देखो, यानी उन्होंने इस कदर अजियत दी जाती है। एक मुसाफिर नैनवा च आने वाले लोगों है, फैमिलीज रिलेटिव्स कोई नैनवा अगर कोई मूव करता है, यानी यह गुनाह खुदा ने मुसाफिर पर बड़ी खूबसूरत कलाम से लिखा है, लेकिन हिस्टोरिकली मैं तुम दस रहा कि मुसाफिर इस कदर जिनसी आस्ते तैयार यानी उन्होंने हालात इस तरह के पैदा कर कि भुख ऐसी कर दी जाती है, और ताजरों के नाल लोगों के नाल जाती की जा रही है, कि मुसाफिर कि बोलो, तो खुदा ने कहा कि नैनवा के लोगों ने मुसाफिर रवैया ठीक नहीं लगे, और यूनान के अंदर नफरत सी, यूनान उन्होंने उसे करना बेहतर की गल है क्यों लोग मैं उन्होंने क्यों मिला, मैं उन्होंने को क्यों जावा, मैं उन्होंने क्यों बचावा, है सर कई दफा नहीं समझ आता नहीं छाटे मुँह है
तो ये साड़ी बनती नहीं है ये इंज ते होंदी यानी कभी दुआ करने वाले लोग भी की कर रहे होंगे नहीं होंगे नहीं बुलाया मैं क्यों जाऊं दुआ करने वाले लोग इबादतां ते जाना पसंद नहीं करते तासुब दे विच की नहीं करना चाहते नहीं मैं नहीं उस गिरदे जाना है मैं उत्थे नहीं जाना यानी मैं बताना ये चाहता हूँ कि यीशु जिस मिशन के लिए उनको भेज रहा था ना उस मिशन वास्ते यीशु ने जुत्ती नहीं दवाई उन्होंने और फिर जो पैर धो के फिर उन्होंने यह गल सिखाई कि पैर धोया करो की करा करो इसका मतलब है कि जो पैर गंदे हो जान ना मर्श की सोच आ जाए ख्याल आ जाए कोई यहो जी गल आ जाए तो इन्हों धोन दिया करो क्योंकि तुम पाक हो पर कभी कभी यहो जी गल्लां देन च आ ही जांदियां ने जिहड़ियां नफरत ते कदूरत का बारिश होंदियां ने ते चौथी गल की है कि यीशु साडे ख्यालों भी चेंज कर रहा सी आमीन ते शागिर्दां नूं यह गल सिखा रहा सी कि जदों तुसीं जाओ पैर धोण दा मतलब सी कि जदों तुहानूं मैं पैर धो के भेज रहा वां तुसीं फरोखती दे नाल की करना है खुदा दी खिदमत आमीन आसीदा की करनी है खुदा दी आमीन 4 गल्लां याद रहणगीਆਂ फिर से ये किसी टाइम ठीक है आओ असीं अपनी अखां नूं बंद करांगे